Good afternoon, everybody. Now the sound is okay. Let's start. In yesterday's class, we were talking about the use of stop. We have done, I think, 3 to 4 points regarding stop. We can use stop, then the gerund after stop verb. If we use stop and to plus first form, that means infinitive. In case of stop, the meaning is different. So that's what we were talking about in our last session. Good, guys. Today, we will start again an interesting topic that is so important for spoken purpose. If I talk about the spoken purpose, this topic is so important, my dear. Let's try to understand. Sound is perfect now. Good. Stop, continue, start. And your homework part was, guys, you have to make at least 10 sentences based on stop, continue, and start. Of course. Okay. ठीक है. तो छुटकू अब जो हम बात करने वाले हैं, that is regarding a topic. The name of this topic is mood verb, but we will not talk about the technical terms, or we can say about the grammatical terms in this topic. We will complete this topic that will be related to our spoken English only. बेटा जितना spoken English से relate करेगा टॉपिक, हम उसको सिर्फ उतना ही कवर करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे. क्या है इस टॉपिक का नाम, उसके बारे में हम एक बार बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं. क्या है इस टॉपिक का नाम, उसके बारे में एक बार बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं. देखो बेटा, देखो, this topic is intention, or you can say intention of a speaker. Intention of a speaker. This topic name is intention of a speaker. Intention of a speaker. Very good. But बेटा जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसे ये पढ़ा है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, दैट इज नॉट रिलेटेड दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. हम इसको कुछ ऐसा करेंगे बेटा, ठीक है, हम इसको कुछ ऐसा करेंगे कि वो स्पोकन से सिर्फ रिलेट करे. हम इसको कुछ ऐसा करने वाले हैं इंटेंशन ऑफ स्पीकर को, जो सिर्फ स्पोकन से रिलेट करे, जो सिर्फ स्पोकन से रिलेट करे. ठीक है बेटा, वेरी गुड. आइए, इस टॉपिक में बेसिकली आता है इफ अ कंडीशनल कंजंक्शन. बेसिकली डियर, इस टॉपिक में हम इफ के बारे में जानेंगे, जो अपने आप में कंडीशनल कंजंक्शन होता है. इफ के बारे में जानेंगे, जो अपने आप में एक कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल अपने बारे में अपने आप में कंडीशनल कंजंक्शन का काम करता है. ठीक है दोस्त, उसके बारे में हम जानेंगे. कंडीशनल कंजंक्शन, सो इफ कैन बी यूज्ड एज अ कंडीशनल कंजंक्शन. तो इफ एज अ कंडीशनल कंजंक्शन काम करता है, तो उसको बेटा यहां पर पढ़ने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, सो कंडीशन दैट मींस इफ 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 इफ. जब भी इफ कोई बोलता है तो हमारे कदम रुक जाते हैं कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है. जैसे उसने बोला आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर दूंगा. यू आर हैप्पी नाउ, ही इज रेडी टू हेल्प यू, दैट मींस दैट इज गुड न्यूज़ फॉर यू, यू आर हैप्पी. बट ही देन आफ्टर सेइंग मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ही सेड इफ, हम रुक गए. There is some condition. There is some condition. So whenever someone says if, that means he is going to apply some condition on a statement. He is going to apply a condition on a statement. तो क्या देखना है बेटा, आइए, आपने यहां पर देखना है एक मेन स्टेटमेंट, यहां पर आपने देखना है एक मेन स्टेटमेंट, जो भी मेन काम आपका होगा. ठीक है, या तो आप इसके पहले कंडीशन लगा देंगे, और आप इसके बाद में कंडीशन लगा सकते हैं. पहली बात अभी याद रखिए. So if is a conjunction that is used to represent a condition on the main statement. If you want to use the statement and before the statement you want to use the conditional statement, you can do so. Or in the second case, you can use the condition after speaking the main statement. बेटा रियल लाइफ में आप मेन स्टेटमेंट से पहले कंडीशन बोल सकते हैं, मेन स्टेटमेंट के बाद में बोल सकते हैं. That is up to you. Let's have an example. If I say I will help her if she comes here. I will help her if she comes here. I will help her if she comes here. Now try to tell me, guys, what is the main statement? Sir, the main statement is I will help her. And guys, if she comes here, that is a conditional statement. And if is a conjunction here. So the conditional statement is if she comes here, I will help her. So if you want to speak this statement before the main statement, you can go for it. Both are correct. So the second statement is if she comes here, I will help her. Then we use comma. But remember one thing, guys, in case of speaking, you have to take a break. When we see comma means what? This comma is used to show the stop or a little bit break, and after some break, you will start the main clause. You will start the main sentence. For example, if she comes here, I will help her. If she comes here, I will help her. Try to speak with me. If she comes here, I will help her. This is the way. So when we use the conditional statement before a main statement, remember one thing. After speaking the conditional statement, you have to stop for a while, then speak the main statement. If she comes here, I will help her. Or otherwise, you can say, I will help her if she comes here. I will help her if she comes here. Got it, guys? Got it? So nice of you. Would you like to have some coffee? No? Thank you so much. So nice of you. I really appreciate your efforts. I always offer you guys, but you always say no. What can I do? So this is the case, condition, main statement. Done, guys? So now let's talk about the next concept. Look, beta. When you speak main statement, you can use anything what you want. It doesn't matter at all. You can use anything what you want. But remember one thing, guys. When we use the conditional statement, guys, in that case, remember one thing. We use if. With if, never ever try to use will, never ever try to use shall, would, never.
And guys, remember one thing, you need not know the hidden reason behind it, because we are here to learn how to speak. We are not here to crack any exam. Remember the point. So when we use if, never use will with if. You can use will, shall, would, anything here, but never ever try to use will, shall and would there. If you want to know the reason behind it, I will try to make you understand, guys, but not in so explanation. A little bit explanation, or you can say with some terse word. Terse means the piddi means short, concise. So let's have some concise way to explain that thing. If I say, I will meet him if he will come here. Look, guys, I will meet him if he will come here. This is a conditional statement, and this conditional statement is based on the main statement. And guys, you can see the main statement is in the future tense. Okay, then you can see the condition is dependent on the main statement, and main statement is in the future tense. Then why should I repeat again and again will? There is no need to use will there again, because the conditional statement is dependent on the main statement. And if you have already given the sense of future in the main statement, then why should I use will again to represent the future tense? This is superfluous. So this is the reason we avoid using will, shall or would in case of if condition. So directly use any other tense. Here the sense is present, then you can say I will meet him if he comes here. I will meet him if he comes here. Got it? Aren't I using a little bit English or more? What do you say? Should I use some Hindi here, or I should avoid using Hindi terms? बेटा मैं ज्यादा इंग्लिश तो नहीं यूज कर रहा हूं, पल्ले पड़ गया ना कहीं। बेटा इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराऊंगा, मैं बताऊंगा बाद। समझ आया ना आपको? It's okay for you, yeah? All right, very good. So that's so nice of you. Actually, I'm trying to make you understand all the concepts in English only, so that you are very, very comfortable in listening. Totally understood? So nice of you. Next one. So I will meet him if he comes here. I will meet him if he comes here. So this is the way. Now the logic behind it, guys. So is that any compulsion that we have to use present indefinite after if? No. You can use any tense. You can use any tense, but avoid using will, shall or would. Suppose आपको एक इंग्लिश बनानी है. Here I'm going to use Hindi statement, and you have to convert the Hindi statement into the English statement. The Hindi statement is, guys, अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे को पढ़ने दे दो, बनाओ इंग्लिश. बेटा इसमें भी जरूरी नहीं आप will shall use करो, कुछ और बोल दो, इसमें तो कुछ भी बोल दो, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप कुछ भी यूज करें. ठीक है, कंडीशनल में बस ये यूज मत करना, बाकी तुम कुछ भी कूड़ा कचरा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे को पढ़ने दे दो, बताओ. Sometimes I got confused. Not I confused me, I got confused. अगर तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे को पढ़ने दे दो, बार-बार मैं क्यों बोल रहा हूं? याद आएगा? देखो, if you are not reading the newspaper, if you are not reading the newspaper, then directly say, guys, let me read it. Please let me read it. Please allow me to read it. Let me read it. Use this statement, guys. If you are not reading the newspaper, let me read it. If you are not watching this movie, let me watch it. If you are not doing your work, let me do mine. मेरे को मेरा करने दो, ठीक है भाई? If you are free, ठीक है, I have some work for you. अगर तुम फ्री हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है. Once you got to know how to speak the English language or how to use the sentences, you need not think Hindi first, guys. Your mind is going to be too sharp, too fast. You will start using English statements directly in front of anybody. Doesn't matter at all. So the thing is, you have to know the each and every concept of English. थोड़ा बेटा सबको जान लो, वो दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनके बाहर निकलेंगे. ठीक है? ठीक है, वेरी गुड. इफ यू आर नॉट यूजिंग योर हेडफोन, लेट मी यूज देम. बहुत बढ़िया. ठीक है, फिर मैं आपको आफ्टर सम टाइम आई विल टेल यू द टेक्निक हाउ टू थिंक इन इंग्लिश ओनली. हाउ टू थिंक इन इंग्लिश ओनली. और शायद मैंने आपको पहले बताया भी था, इंग्लिश में ही खाली कैसे सोचें. ठीक है, अब आप बेटा कितने सेंटेंस बनाओ. चलो अब मैं भी देता हूं. देखो एक और सेंटेंस बनाते हैं. अगर आपने अपना रूम क्लीन कर दिया है तो तुम घर जा सकते हो. अगर तुमने अपना रूम क्लीन कर दिया है तो तुम खेलने जा सकते हो, तुम क्रिकेट खेलने जा सकते हो. ऐसे में अगर तुमने अपना कमरा साफ कर दिया तो तुम क्रिकेट खेलने जा सकते हो. ट्राई टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश. कम ऑन, हरी अप. अगर तुमने अपना रूम साफ कर दिया है, परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, तब क्या बनोगे? इफ यू हैव क्लीन्ड योर रूम, हां, यू मे गो होम, यू कैन गो टू प्ले क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेलने जा सकते हो. यू मे गो टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलने जा सकते हो. द पोलाइट वे एंड द परमिशन इज देयर. यू कैन यूज मे, यू कैन यूज कैन. यूज इट. यू कैन गो टू प्ले क्रिकेट, यू मे गो टू प्ले क्रिकेट इफ यू हैव क्लीन्ड योर रूम. ठीक है. If I say if you have attended all your classes or if you have taken your classes, you will start speaking English. ऐसे इजी नहीं हो गया यार. देखो मजाक में आज आपको if का यूज पता चल गया. अब बेटा आपको if का यूज पता ही नहीं होगा, then how is that possible you can use if while speaking? So this is the reason, guys. You need guidance to learn English, of course. For spoken, for competitive, for each and everything. You need guidance. Guidance का मतलब क्या होता है? वो आपका रास्ता आसान कर देती है. But dependent मत बनो बेटा. आप बोलोगे नहीं तो मैं आपको कैसे सिखा दूंगा? अब देखो कितने there are so many students they are trying to make their own sentences regarding if. So you have to take a step ना. I can't make you speak English if you are not ready to speak. अब आप मेरी इंग्लिश जब मैं बोलता हूं सुनोगे तो आपको पॉजिटिव वर्ब भी यूज होती नजर आएंगे, मैं मॉडल्स भी यूज कर रहा होता हूं, मैं टेंसेस भी यूज कर रहा हूं. आपको सारी चीजें यूज होती नजर आएंगी. मेरे दोस्त. और टॉपिक देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग चला रखे हैं हमने. हमारे कोई टॉपिक नहीं है स्पोकन में कहां का टॉपिक भाई. देखो बच्चे कितना प्यारा सेंटेंस बना. इफ यू डोंट माइंड आई कैन हेल्प यू. वेरी गुड. इफ यू डोंट माइंड आई कैन हेल्प यू. आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका हेल्प कर देता हूं.
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, और आज होमवर्क भी दूंगा मैं आपको फिर। यू हैव टू मेक एटलीस्ट 30 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सेंटेंसेस। मुझे तो नहीं लगता, मुझे कभी कभार लगता है जो सोचते हैं वो बोलते हैं। बेटा इफ यू कैन थिंक यू कैन डू दिस वर्क, इफ यू कैन थिंक यू कैन स्पीक। हाँ बेटा, प्रॉब्लम ये हो सकती है द लैक ऑफ वर्ड्स, कि आपके पास शब्दों की कमी है। सर आई रियली डू नॉट नो व्हिच वर्ड शुड आई यूज हियर। हाँ तो ऐसे बोल देना। अब बेटा आपको हिंदी में बोलना है, किसी का देहांत हो गया, कोई गुजर गया, हाँ अब ना तो तुमने गुजरना शब्द सुना कहीं, ना किसी का देहांत होना सुना, तुमने एक बात सुनी वो मर गया, अब तुम्हें मरना जो है वो गलत लग रहा है कि यार वो बोल रहे वो दादाजी मर गए, मुझे लग रहा है मरना थोड़ा सा हार्श साउंड करेगा, बेकार गंदा साउंड करेगा। कहता वो दादाजी को ना, हाँ वो ना दादाजी को कुछ हो गया है, शायद वो ना भगवान के पास चले गए हैं। आप ऐसे हिंदी में बोलते हो ना बेटा, ऐसे इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते? You have to start finding out the alternative of your sentence. If you can't translate the exact sentence, my dear student, try to change the circumstances, try to change the flavor. That means the exact meaning that you want to convey, you will convey the meaning, but by using different words, because I do not know the exact word that I should use here. Then try to use your words. This is the way. If I can't translate, what should I say? If you can't find out the exact word for the sentence, then change whole the sentence. Got it? This is the way. If you can't make a sentence with the word because you do not know the meaning of that particular Hindi statement or meaning of particular Hindi word, then translate, or you can say that then try to change the whole sentence. ठीक है, ये देखो बेटा, आएगा ना, ये आ जाएगा। तो पूरा सेंटेंस ही बदल डालो यार, पूरा सेंटेंस ही बदल डालो, बस इंग्लिश नहीं रुकनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? इंग्लिश नहीं रुकनी चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज एक और कल देखो, मेरे भाई ऐसा होता है, मेरे मूड पे होता है बेटा, मैं आज बताने के मूड में हूं, तो सुन लो, आज एक नई टेक्निक सुन लो। देख मेरे भाई, ये ना सपोज करो एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है और तुम्हें पता ही नहीं इसको प्लेट कहते हैं, और तुम्हें किसी से मांगनी है, तो तुम क्या बोलोगे? आई वांट दिस प्लेट, प्लीज गिव मी दिस प्लेट। हाँ, तो आपको इस प्लेट को किसी से मांगना है। हाँ तो बेटा आपको नहीं पता, आप इसके लिए पता नहीं कितने सेंटेंस बोलेंगे। ये प्लेट दे दे भाई, ये प्लेट इधर पास कर दे भाई, भाई मुझे ये प्लेट चाहिए। कितने बोलोगे? आई वांट दिस प्लेट, प्लीज गिव मी दिस प्लेट, प्लीज पास दिस प्लेट टू मी, आई नीड दिस प्लेट, नीड वांट, पास कर दो भाई, दे दे भाई, मेरे को चाहिए भाई, जरूरत है भाई। क्या क्या नहीं बोल सकते? चलो तुम्हें पता ही नहीं इसको प्लेट कहते हैं, प्लेट मत बोलो, इसको दिस बोल दो, प्लीज पास में दिस। तभी तो शब्द, अरे ये पास कर दे मेरे को, अरे यार ये पास कर दे मेरे को। आया दिमाग में बैठी बातें, अब ये चीजें। अब कोई कहता है मैं तो ये भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता, फिर तो बेटा तूने बैठ खामा खा ले लिया, तो तेरे से तो इंग्लिश ना बोली जाएगी बेटा। ठीक है, जो तू बोलना ही नहीं चाहता। सो इट्स जस्ट लाइक you are in a room and there are so many people there, but you cannot use English or Hindi. You cannot use Hindi. You have to speak English. Otherwise, nobody is going to help you out. Guys, you will start speaking English. You will start to make some structures so that you can make people understand you. फिर बोलना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए बोलते हैं बेटा, अगर आपको फोन में छोड़ दिया जाए तो 4-5 महीने बाद आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। चाइना में बेटा, कभी चाइना जाओगे ना तब पता चलेगा, वो निकम्मे इंग्लिश यूज नहीं करते, ना वो निकम्मों को हिंदी आती है, ना उनको इंग्लिश आती है, उनको क्या मत हमारे। तो बेटा अगर हम इसी घमंड में जिए कि हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हमारी मातृभाषा हिंदी है, इस घमंड में चाइना वाले जी रहे, तो वहां जाके जो भी जितने बाहर के जाते हैं, ठीक है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। दे डू नॉट यूज हिंदी, दे डू नॉट यूज द इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, ओनली दे यूज देयर लैंग्वेज। फिर हम वहां ट्रांसलेटर लेके घूमते हैं। बट थिंग इज गाइस, द ट्रांसलेटर विल वर्क exactly the same if you speak in English to the translator. हिंदी की ट्रांसलेशन में वो गड़बड़ करता है, फिर हम ट्रांसलेटर लेके घूमते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, द ट्रांसलेटर वर्क्स 70%, not 100%. दिस इज द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में तो इंग्लिश की हिंदी रहेगी, मुझे तेरा इंतजार है, इंग्लिश आएगी उसकी। क्या कहता है? एग्जैक्टली इंग्लिश आएगी, एग्जैक्टली तो नहीं आती, तो हम जब हम हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलो, उसकी हिंदी कहता है हिंदी नहीं। बट दिस इज, आई एम ट्राइंग टू से, यू आर अ ट्रांसलेटर, यू आर नॉट अ स्पीकर। स्पीकर मींस व्हाट? स्पीकर is not going to make any mistake, but guys, we are going to make mistakes because we are beginners. That means we are translators, and translator means what? I will make you understand whatever I am going to speak, whatever I feel, I will make you understand. But how? It's up to me. कैसे मैं खुद को बताऊंगा भाई, वो मेरे पे। तो आई एम अ ट्रांसलेटर, आई विल वर्क 70%, आई एम नॉट हियर फॉर 100% ट्रांसलेशन। आप क्या करते हो? 10 साल पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे हम, बिल्कुल एग्जैक्टली इंग्लिश में। भाई मेरे को 10 साल हो गए बेटा इंग्लिश पढ़ाते हुए, 10 से ज्यादा करीब, तो उसके बाद मैं कर पा रहा हूं ना। समझ रहे हो बात को? आप साथ तो नहीं सर, जैसे आप ट्रांसलेट कर देते हैं, इफ यू कैन ट्रांसलेट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन द इंग्लिश स्टेटमेंट exactly the same feelings, I will make myself translate all the sentences. It will be possible guys, but not right now, in your future. But right now you are a translator, 60 to 70% आप ठीक करो तो याद रखिए। तो चाइना में कभी भी ये ट्रांसलेशन नहीं होती, ठीक है ना? चाइना में ये चीजें नहीं है, और बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाएंगे, परेशान फ्रस्ट्रेट और आप इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का ये फंडा मिल गया एक और आपको पता चल गया। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो बेटा, आपने कुछ भी मतलब अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, बेसिकली नॉट टॉपिक। आपने यहां तक एक बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि इफ को आप कैसे भी यूज करें, इफ आप यूज करने में कंफर्टेबल है, इफ को आप यूज करने में कंफर्टेबल है, ठीक है, कंफर्टेबल है। चलिए अब इसके बारे में अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। सो बेटा इफ से रिलेटेड आप कितने भी सेंटेंसेस बना लोगे तुम, अब आप इससे रिलेटेड कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है ना? बट बेटा याद रखिएगा, इसके बाद मैंने प्रेजेंट यूज किया है, मैंने अभी पास्ट यूज नहीं किया। पास्ट यूज मत करना, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां चेंजेस आ जाएंगे। चलो अब जानते हैं बेटा इसको, समझिएगा यहां चेंजेस क्या है, किसके रिगार्डिंग। तो अब तक हमने इफ के साथ ये चीजें यूज की, सिर्फ आपने ये चीजें। अब थोड़ा सा इफ के अलावा आप टाइम वर्ड्स को जानिए। पहले इफ के बारे में मैं आगे बात करूंगा। सर वी कैन यूज इफ एंड आफ्टर इफ वी कैन यूज प्रेजेंट, ठीक है? इसमें लिखेगा बेटा, आपने जहां तक लिखा ना, इसमें लिखेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको ऐसे लिखवा दो बेटा। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, या फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस यूज करें, ठीक है डियर। इसके बाद आप एज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करें, ठीक है डियर। इसके बाद आप हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म यूज करें, ठीक है डियर। इसके बाद आप हैज बीन कॉपी करना बेटा साथ साथ, आप इसके बाद हैव बीन, हाँ, और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करें। बट इसके साथ आपको पता है ना, फॉर या सिंस या टाइम आपको यूज करना पड़ेगा, फॉर सिंस या फ्रॉम, हाँ, डजंट मैटर एट ऑल बेटा, जो इसका मीनिंग है वो इसका मीनिंग रहेगा, ठीक है? इसलिए मैं लिखवा रहा हूं ये। जो आप पीछे सीखा ना वो इसका निचोड़ है बेटा, जो पीछे सीखा वो इसका निचोड़ है। वी सेल कहीं नहीं आना पुत्र, ठीक है?
इसके बाद आप जो भी मेन क्लॉज यूज करेंगे, मतलब मेन स्टेटमेंट यूज करेंगे, हाँ, वो अकॉर्डिंग टू सेंस हो जाएगी, है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, इफ के साथ कैन यूज कर सकते हो, बिल्कुल। इफ यू कैन नॉट डू दिस वर्क, लेट मी डू इट। अगर तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, मुझे करने दो। इफ यू कैन नॉट डू दिस वर्क, लेट मी डू इट। अगर तुम इस काम को नहीं कर सकते हो तो मुझे करने दो। ठीक है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इफ यू आर, या इफ यू कैन नॉट डू दिस वर्क, लेट मी डू इट। अगर तुम इस काम को नहीं कर सकते हो तो मुझे करने दो। ठीक है, डन। तो देखो, अभी आप यहां पर जब आप लिख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इतना बेटा, सबका एक सेंटेंस बना लोगे, सबका एक सेंटेंस बना दोगे बेटा। अभी मैंने बनवाया था ना, देखो, इफ शी कम्स हियर आई विल हेल्प हर, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर लेट मी रीड इट, इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो होम, इफ यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स यू कैन हैव सम रेस्ट। अगर तुम इस काम को 2 घंटे से कर रहे हो तो अब तुम थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। श्योर, सो दिस इज योर होमवर्क। 1 2 3 4, तो दो सेंटेंसेस बनाना, 2 सेंटेंसेस। अब अगली बात करते हैं बेटा। अगर इफ के साथ ये चमत्कार होता है तो समझ आती है बेटा। अगर इफ के साथ में कुछ और चमत्कार कर दूं, आइए अब अगली बात पे आते हैं। अगर डियर मैं इफ के बाद एक सब्जेक्ट यूज कर दूं एंड आई यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओ माय गॉड, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज। इफ सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज। ठीक है, अगर ऐसा कर दूं और फिर कोमा लगा के मेन स्टेटमेंट लिख दूं, बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, अब याद रखिएगा, दिस इज नॉट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस राइट नाउ। इफ आई यूज इफ सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, this is called present imagination, not tense. So in that case, not tense. Remember second form of verb, present imagination. याद है बेटा, ये है मेरे पुत्र present imagination. अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों में पैसा बांट दूं। ठीक है, ठीक है। If subject and second form of verb, here in that case this second form of verb is used not for the tense, this is used for the present imagination. ठीक है, आपको इसको present imagination की तरह यूज करना है। डन है? देखो, देखो, और इसका हिंदी मीनिंग भी समझना बेसिकली बेटा। हिंदी मीनिंग समझ नहीं आया तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? हिंदी मीनिंग समझ नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। अब इसमें सेकंड फॉर्म आप वर्ब यूज करोगे, ठीक है। देखो, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा हूं, अगर मैं राजा हूं, ये बन गया बेटा। हाँ बताइए, तो ये आप राजा हैं नहीं है तो क्या है? इमेजिनेशन। अब बेटा आप यहां पे ये लिख दो, आई विल हेल्प द पुअर, आई विल हेल्प द पुअर। बेटा एक बात बताइए, आई विल हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद कर दूं। अब इसमें एक बात बताइए पुत्र, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग आई विल हेल्प द पुअर। बेटा यहां ये क्या है? एक नॉर्मल बात है, इमेजिनेशन है। आपने बोला सर इमेजिनेशन है, अगर ये इमेजिनेशन है बेटा, ये इमेजिनेशन है तो विल थोड़ी ना इमेजिनेशन दिखाता है बेटा, वुड इमेजिनेशन दिखाता है। याद आया? याद आया? तो मॉडल्स में सिखाया था। तो बेटा वहां विल यूज मत कीजिएगा, आप वहां वुड यूज कीजिएगा। इसका मतलब यहां पर आप या तो वुड यूज करो, हाँ, या आप कुड यूज करो, ठीक है, या आप माइट यूज करो। इमेजिनेशन में ये तीनों चीजें काम आती हैं, ठीक है। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द कार, आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। तो इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और अगले में बेटा वुड कुड। ठीक है, तो कैसा आएगा बेटा? यहां सेंस आएगा, अगर मैं राजा होता, होता नहीं बेटा, पास्ट की बात नहीं कर रहा, अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों की मदद कर दूं। अब देखो बड़े सेंटेंस बनाने लग जाओगे आप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा ना बेटा, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे ना, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा। चलो अब आप एग्जांपल्स बनाओ। अगर मेरे पास और पैसा हो तो मैं ये गाड़ी खरीद लूं। अगर मेरे पास और ज्यादा पैसा हो, या अगर मेरे पास पैसा हो, इतना बना लो, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ये गाड़ी खरीद लूं। अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ये गाड़ी खरीद लूं। अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ये गाड़ी खरीद लूं। इफ आई हैड मनी, बेटा ये हैड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस कार। अगर मेरे पास पैसा हो मैं ये गाड़ी खरीद लूं। देखो आज बड़े बड़े सेंटेंसेस बना दोगे आप, और ये तो आपने आधे आधे तो पहले सीखे मेरे से। आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा हो। तो अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं गाड़ी खरीद लूं। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस कार। ठीक है, चलो अगर मेरा दोस्त आ जाए तो मैं उसे किताब दे दूं, मतलब आया तो नहीं है वो, अगर आ जाए तो बताओ बेटा, अगर मेरा दोस्त आ जाए तो मैं उसे ये किताब दे दूं, तो आप पता है क्या बोलोगे? इफ माई फ्रेंड केम आई वुड गिव हिम दिस बुक। अच्छा, दे सकता हूं, दे दिस बुक, दे सकता हूं, दैट गाइज इन दैट केस अवॉइड यूजिंग वुड, यूज कुड गिव। आई कुड गिव, आई कुड गिव हिम दिस बुक, आई कुड गिव हिम दिस बुक। वेरी गुड, वेरी गुड।
Oh, my voice is not coming. Now, I'm saying, dear, when we talk about the imagination, we cannot use was. With the singular and plural subject, we use were. That is the reason I use were here, not was. You cannot use was. Remember, I have already taught you. चलिए, हाँ वॉइस में बेटा सेल वीक हो गए. चलो कोई नहीं, वैसे भी क्लास खत्म ही होने वाली है. आज चार्जिंग पे नहीं लगे. Got it? Now let's talk about the homework part. हाँ बेटा वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है. बैटरी लो हो चुकी है सेल्स की. चलो क्या चेंज करेंगे, छुट्टी का वैसे भी टाइम हो गया, छुट्टी करते हैं. चलो. So your homework part is, guys, you have to make 30 sentences by using if. अगर ये हो जाए ये कर दूंगा, अगर ऐसा होगा ऐसा कर दूंगा. If he comes, I will give him some books. अगर आता है तो दे दूंगा, आए तो दे दूं. कैसे भी imagination भी बनाना, वैसे भी बनाना. So I'm saying, guys, we have done two concepts. First concept is this one. La 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 la. And again the next concept is this one. This one and this one. तो इस पर बेस्ड आपको sentences बनाने हैं और इस पर बेस्ड आपको sentences बनाने हैं. 30 sentences. And remember, the same concept is there. You need not write these sentences. You have to practice speaking, not writing. So there is no requirement to write any sentence. My dear students, please try to speak. Please try to speak. मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ, प्लीज ट्रांसलेट. अरे यार कल भी करवा देना, बेवकूफ है क्या, छोटे-छोटे सेंटेंस ट्रांसलेट कराता रहता है. ठीक है? So that is your homework part. Please take it very seriously, guys. This topic is so related to your spoken part, and you can, of course, you can understand it. चलो बेटा. So that's all for today. We will meet tomorrow, and I'm not sure about the 9:30 class at night. So बेटा चेक कर लीजिएगा, अगर क्लास होगी, ठीक है, अगर क्लास होगी तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन. Otherwise, that's all for today. Bye bye. Take care. Love you all. Stay motivated and always keep smiling. Bye bye. Take care. Bye bye.